Hi everyone, welcome to Bada class. Today we'll continue with the previous lecture on French Revolution. Okay, we have come till thinkers, right? Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire. What do you remember from the last class part or about these thinkers? Gave social contract, Montesquieu, spirit of laws, Voltaire. He criticized the church, right? And Montesquieu also talked about separation of power. What kind of separation of power? What three pillars of democracy we were talking about? Judiciary, right? So coming down, we are on growth of middle class. Middle class को एक और term से बुलाया जाता है. What is that? It's written right over here, bourgeois class. Okay, you pronounce it as bourgeois. Okay. Rising bourgeois, it comprised of merchants, professionals, businessmen who gained economic power. How did they gain economic power? What had happened during that time in Europe that helped some people from the third estate to come up in ranks? What was that thing called? Industrialization. It's very important to remember this term, industrialization. It helps some of the people from the lower rung or from the third estate to come up in the ranks and then call for something known as revolution. These were the enlightened people because they got educated, right? They went into doing businesses, and that's how they got money, and they realized that we shouldn't be under the power of just one person king, and we shouldn't subdue our rights for the whims and fancies of the king, right? So they called for ideals of liberty and equality and fraternity, right? And they demanded change. They resented aristocratic privileges that blocked their advancement. What does resented means? Or what does the whole line mean, if you could explain? Are you there? राइट, दे डिमांडेड चेंज. उस लाइन से ही हमें समझ में आ जाता है. एंड दे रिजेंटेड एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, मतलब वो अभौर करते थे, दे हेटेड, उनको नहीं पसंद था ये जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ थी. वो चाहते थे बिकॉज दे रिजेंटेड एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस दैट ब्लॉक देयर एडवांसमेंट. क्योंकि ये जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ थी, ये कुछ लोगों को तो बहुत बेटर ऑफ करती थी जो ऑलरेडी बेटर ऑफ थे, लेकिन जो डाउन ट्रॉडन थे या फिर जो थर्ड एस्टेट थी, उनको तो हेल्प नहीं करती थी ना. सो ऑब्वियसली दे कॉल्ड फॉर इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी. एंड देन इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर रेवोल्यूशंस. व्हाट का अमेरिकन रेवोल्यूशन पहले हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन से या बाद में हुआ था? या इट वाज इन 1776 फ्रेंच रेवोल्यूशन. और इससे भी हम जान सकते हैं बिकॉज द फ्रेंच वर द वंस हु हेल्प्ड 13 American colonies to get liberated, right? And American Declaration of Independence provided a model for French reformers. Obviously, जो पहले हुए हैं उनसे ही तो हम इंस्पिरेशन लेंगे, right? And we have done this. If you could tell me the immediate causes that led to French Revolution. You can even read it from here and explain. नहीं, मैंने आप गलत बता रहे हैं. मैंने आपसे कॉजेस पूछा जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. आप मुझे बता रहे हैं नेशनल असेंबली बनने के बाद, जब किंग ने बोल दिया नेशनल असेंबली बन सकती है, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, जिसे लैंड कॉन्फेस्केट कर लिया गया, या टैक्स अबॉलिश कर दिया, फ्यूडलिज्म अबॉलिश कर दिया, जिसकी वजह से फ्रेंच ट्रेजरी में 2 बिलियन लेवर्स आए. यू आर टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्म दैट हैपेंड. आई एम टॉकिंग अबाउट द इमीडिएट कॉज. इमीडिएट कॉज क्या था
कि फ्रेंच सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा डेट हो रही थी क्योंकि उन लोग ने अमेरिकन रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था. सो दे हैड नो मनी, दे हैड लॉस्ट ऑल देयर मनी इन द अमेरिकन वॉर फॉर द अमेरिकन कॉज. तो उसकी वजह से उनके ऊपर लोन था, उस लोन को पे करने के लिए वो इंटरेस्ट देते थे. तो देयर वाज नो मनी इन द ट्रेजरी एंड देन द किंग वाज थिंकिंग लेट्स इंक्रीज द टैक्स, जिसकी वजह से नेशनल असेंबली बिठाई. नेशनल असेंबली में सहमति नहीं आई, देयर वाज नो अग्रीमेंट इन द नेशनल असेंबली एंड हेंस दे मेट एट द टेनिस कोर्ट, राइट, ऑन विच डेट? On 20th June. On 20th June. I think you haven't studied it. You should say it quickly. On 20th June 1789, they met at tennis court, जहाँ पे tennis court oath उन्होंने ली that we will stay united until a constitution is framed, until we achieve the demands that we are asking for, right? And a state general meeting के key issues, voting method by order or head. It was actually पहले क्या था, one vote per estate, but they demanded one vote per member. Representation same होनी चाहिए. Third estate had same votes as others despite size. थर्ड एस्टेट में 600 थे, whereas फर्स्ट और सेकंड में कितने थे? 300. तब भी सबके वोटिंग राइट सेम थे. तो इनका कहना था कि नहीं, we are larger, so why the voting rights are not equal? They demanded equal voting rights. टैक्स रिफॉर्म प्रपोजल के वो अगेंस्ट थे. दे वांटेड टू अबॉलिश द ओल्ड टैक्स regime, right? The privileged estates refused to give up their traditional advantages. This deepened the political crisis and ultimately then they met. और इसको बोलते हैं, जो मीटिंग कंडक्ट हुई थी वर्सेल्स में on May 5th 1789 and it was after how many years? और इससे पहले कब कंडक्ट हुई थी? in which year? एस्टेट, right, good, 1614 में हुई थी और उसके बाद अब हो रही थी. एंड हु कुड कॉल द स्टेट जनरल असेंबली? किंग, एग्जैक्टली. सो किंग ने इतने सालों में नहीं करी, 1789 में जाके करी नेक्स्ट मीटिंग कॉल. एंड सो या ये मीटिंग कॉल करी, इसमें सहमति नहीं हुई. देन दे मेट एट टेनिस कोर्ट ओथ, क्योंकि स्टेट जनरल असेंबली बंद थी उनके लिए. सो दे मेट देयर एंड दे सेड वील स्टे यूनाइटेड जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फ्रेम कर लेते. लेकिन क्या किंग ने इजीली ये बात सुनी, उनकी मान ली? No, king did not listen to them initially. It was only when the Bastilles were stormed on 14th of July, right, that the king had to give in the warrants, and that is why Bastilles Day storming को, raiding of the Bastilles को बोला जाता है बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. वहां से माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई. ठीक है. वोटिंग डिस्प्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, ये इट इज अ रेपिटेशन ऑफ व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली, राइट. सो वोटिंग डिस्प्यूट था जिसकी वजह से वो ब्रेक अवे हो गए, उनमें सहमति नहीं हुई. नेशनल असेंबली ने बाद में अपने आप को जून 17 को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था और बोला था कि वी विल स्टे यूनाइटेड अंटिल अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड. और ये टेनिस कोर्ट ओथ दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, पब्लिक का सपोर्ट था, ओथ ली, ओथ को प्लेज भी हम बोलते हैं. दे swore never to separate until the constitution of the kingdom is established. This unified action defied royal authority. What does defied means? ये आपको इस लाइन से क्या समझ में आता है? This unified action defied royal authority. मतलब उनके अगेंस्ट गए जो रॉयल, yeah, they did not give in to the royal power, they defied it. उनके अगेंस्ट गए, रॉयल अथॉरिटी के अगेंस्ट जाने को बोलते हैं डिफाइड. पॉपुलर अपराइजिंग, ऑब्वियसली स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल से हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत को, जहां से हम मानते हैं वो स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल से देखते हैं. तो इसीलिए दिस इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 14 जुलाई 1789 इसमें सबने पार्ट लिया था, लेकिन जो प्रोमिनेंट पार्ट लेने वाले थे दे वर वुमेन, राइट. वायलेंट कन्फ्रंटेशन, सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि दिस वाज आल्सो द सिंबल ऑफ फ्रेंच पावर, इसीलिए बास्टिल्स को स्टॉर्म किया जो कि एक प्रिजन था. एंड इसी बीच में पेजेंट रिवोल्ट्स एंड ग्रेट फियर, समर 1789, ओवरऑल सिचुएशन बहुत खराब थी उस टाइम फ्रेंच सोसाइटी की. रूरल अपराइजिंग भी चल रही थी, मतलब रूरल एरियाज में भी जो पेजेंट्स थे वो भी अगेंस्ट खड़े हो रहे थे किंग के. एक फियर था कि नोबल्स जो है वो
पेजेंट्स को स्टार्व करेंगे, ये सारा मतलब पैनिक, एक फियर वो भी था कि जो किंग है he has sent the army to kill the third estate, and hence they had stormed the Bastilles, right? And this led to widespread violence, social breakdown पूरी तरीके से, and then abolition of feudalism, night of 4th August 1789, right? Feudalism was abolished, and उसके अलावा टैक्स जो ओल्ड टैक्स रिजीम था वो भी हटाया गया था, राइट? सो इन सब, अर्लियर दैट यू हैड टोल्ड मी कि गवर्नमेंट को 2 बिलियन लेवर्स आए, तो वो इस सब से आए थे, राइट? This act effectively ended centuries of inequality because obviously they were thriving for liberty, equality, fraternity. Declaration of Rights of, the dates are important, focus on the dates, right? अभी हमने पीछे किया 4th of August को नेशनल असेंबली, फ्यूडलिज्म अबॉलिश हुआ। फ्यूडलिज्म क्या था? कौन सा सिस्टम? रेंटल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। सो वो अबॉलिश हुआ। एंड टेनिस कोर्ट ओथ कौन सी डेट को हुई थी? नो, 5 मई को तो स्टेट जनरल की असेंबली हुई थी। 20th of June, 14 जुलाई को बैस्टिल्स की स्टॉर्मिंग हुई थी। 4th जून कह रही हूँ, 4th अगस्त को बोलो, राइट, 20th जून को हुई थी टेनिस कोर्ट ओथ। 14th जुलाई को बैस्टिल्स स्टॉर्मिंग हुई थी। 4th अगस्त को हुआ था एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। देन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 26th August 1789। इट्स स्टिल इजियर टू रिमेंबर ये वाला, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है, सो 26 आप वहां से ले लो। 15th अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, तो वो ले लो। सो 26 अगस्त को जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन हुआ। नेचुरल राइट्स की बात किसी थिंकर ने भी कही थी। Who was that thinker? John Locke, right? John Locke. Men are born and remain free and equal in rights. Legal protection. Law is the expression of the general will. What is this general will? Will of the people. All citizens have right to participate. Representative form of government honi chahiye. Everyone has the right to put forth their ideas, right? And personal freedom, liberty consists of doing anything that does not harm others, as long as your actions are not harming someone else or poking someone else's nose. Until then you have the liberty. Okay, so wahi cheez they were calling for. And right to, wait a second, राइट टू रेजिस्ट, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब कि अगर मोनार्क है वो हमारे साथ गलत कर रहा है तो वी हैव द राइट टू रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब कि हम बोलेंगे कि ये हमारे साथ मत करो, राइट? ये वी हैव द राइट टू स्पीक अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। if I slap you for no reason, right, you have the right to say you can't slap me. So you have the power to resist, you have the right to resist. This is what ये सारे आइडियल्स को we were trying to we achieved through Declaration of the Rights of Man and Citizen. Okay, मार्च ऑन वर्सेल्स में women ने सबसे ज्यादा लीड किया था। On October 5, thousands of Parisian women marched to Versailles. They were protesting bread shortages, जिसको हम bread crisis के नाम से भी जानते हैं। The crowd demanded the king address the food crisis. Some broke into the palace seeking the queen. Queen को इसलिए because queen was the one जो कि बहुत ज्यादा extravagant थी, right? And because she belonged from Austria, so people of France did not connect much with her. So ultimately, yeah. Substance crisis. Yeah, they are same. Subsistence crisis मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है। ओवरऑल आपका लाइवलीहुड ही डेंजर में है, राइट? लाइवलीहुड इज योर सोर्स ऑफ अर्निंग, मीन्स ऑफ अर्निंग, राइट? एंड जब आपका वो डेंजर में है, आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप खाओगे कैसे? मतलब देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्राइसिस, एक के बाद एक, राइट? सो सब्सिस्टेंस क्राइसिस इज लाइक, आई डोंट नो इफ यू नो वेन डायग्राम और नॉट। ये वेन डायग्राम अगर है तो अगर हम इसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं,
तो इसमें लाइवलीहुड क्राइसिस भी आ जाएंगे, जो सबसे पहले आप लिखोगे। मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब सीकर ज्यादा हैं, जॉब गिवर्स एम्प्लॉयमेंट देने वाले कम हैं, लेने वाले ज्यादा हैं। और उसके बाद इसमें फूड क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि बैड हार्वेस्ट थी, इसमें डिजीजेस आ जाएंगे, सब कुछ बेसिकली इंसान का जीना ही जो है वो क्राइसिस में हो गया था, जीवन, राइट। बट यू हैव टू मेंशन द वर्ड लाइवलीहुड क्राइसिस एज वेल, राइट। देन फेल्ड एस्केप, जून 1791, किंग ने अटेम्प्ट किया एस्केप करने का, फ्लाई आउट करने का फ्रांस से, बट वो फेल हो गया एंड अल्टीमेटली मोनार्की एबॉलिश हुई थी एंड टुलरीज अटैक प्लेड द मेजर रोल, ठीक है, क्योंकि पहले मोनार्की थी, then we went to constitutional monarchy and ultimately we went to republican form of government, जो कि पूरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी थी वो भी एबॉलिश कर दी थी। मोनार्की मतलब किंग का रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब किंग का रूल, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, किंग भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ जाएगा। देन वी रिमूव दैट ऑल्सो एंड वी मूव टूवर्ड्स रिपब्लिकनिज्म, जिसमें दो सबसे पहले कौन सी आई थी, किन्होंने रिपब्लिकनिज्म लेके आया था, डायरेक्टरी से पहले कन्वेंशन, कन्वेंशन लेड बाय विच क्लब, या जैकोबिन क्लब हेडेड बाय Robespierre, exactly. Just a second. So yeah, and इसमें टुलरीज अटैक का मेन रोल था, क्योंकि टुलरीज वाज द पैलेस वेयर द किंग एंड क्वीन वर रिजाइडिंग एंड उनको कैप्चर कर लिया गया था, हॉस्टेज ले लिया गया था एंड अल्टीमेटली दे वर सेंटेंस्ड, imprisoned by the National Assembly. Republic declared September 1792 में, फ्रांस से monarchy abolish हो गई and it became a republic ultimately. What is the republic? You are telling me transfer of power. I am asking what is republic? Monarchy is rule of the king. Republic is rule of the constitution. Constitution is made by whom? People. It has the will of the people. So republic is the rule of the people. Rule of the people, by the people, that way, right? Constitution is a document that carries the will of the people. So की प्रिंसिपल्स रेवोल्यूशन के, या थ्रू आउट ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चला, जिसमें हम मूव करें मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिकनिज्म की और रिपब्लिकनिज्म में भी बहुत सारे फॉर्म्स थे, पहले कन्वेंशन आया, डायरेक्टरी आया, फिर जाके नेपोलियन बोनापार्ट का डिक्टेटरशिप आया एंड अल्टीमेटली आज वी हैव द सोसाइटी दैट वी डू। सो बट इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो चीजें कांस्टेंट थी, जो आइडियल्स कांस्टेंट थे, दे वर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. If you could quickly tell me what these ideals meant. Yeah. Oh. Fraternity meant? Unity among everyone. In simple, if you have to sum it up in one word, it has to be brotherhood. Fraternity is equal to brotherhood. सब में भाईचारा होना. That means fraternity. And liberty में एक और चीज आती है, that is government by consent या representative government, जिसमें लोगों की भी राय ली जाए, right? And citizenship, active participation in governance, belonging to a nation rather than being a royal subject. कि सिर्फ जो मोनार्की है या फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग हैं, उन्हीं के पास रूलिंग पावर नहीं है. रूलिंग पावर कम्स डाउन टू द सिटीजंस एज वेल. Okay, they are also now the active participants in the government. और impact on France and world. Within France तो feudalism end हुई, absolute monarchy end हुई, taxes end हुए, old regime के taxes, right? Across Europe भी इसका sentiments गए कि हमें भी ये चीज चाहिए है. क्या चीज चाहिए? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ द किंग. हमारी विल भी सुनी जानी चाहिए. जो आपके 10th क्लास में भी आएगा ज्यादा और डिटेल में, नेपोलियन बोनापार्ट का रोल या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, वो सब.
In the Americas, influence independence movements in Latin America and legal legacy model for human rights declarations worldwide. आज भी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आइडल्स बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हैं. इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी preamble में it is mentioned liberty, equality, fraternity, and we say we have been inspired from France, so we have taken this from France into our constitution as well in the Indian constitution. So if we do a quick recap, immediate trigger फाइनेंशियल क्राइसिस थे, कॉलिंग ऑफ एस्टेट, जिसकी वजह से उन्होंने एस्टेट जनरल बुलाई, लेकिन वहां पे कोई सहमति नहीं हुई. फिर जो इंटेलेक्चुअल कॉजेज, इनलाइटन, इसी के साथ साथ ये तो एक कॉज हो गया कि इमीडिएट ट्रिगर था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी जिसको हम सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं. बट सेकंड था इंटेलेक्चुअल कॉजेज. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक मिडिल क्लास उठ के आ रही थी जिनको अपने राइट्स के बारे में पता लग रहा था, एंड एज दे गॉट टू नो अबाउट देयर राइट्स दे सेड नो, वी कैन नॉट बी सब्जुगेटेड टू द किंग्स वांट्स एवरी टाइम, राइट, हमारे अपने भी राइट्स हैं. इंटेलेक्चुअल, दे हैड द ब्रेन, जिसको हम एनलाइटनमेंट एरा भी बोलते हैं. ओके, political factors, weak leadership, indecisive king, right, extravagant queen and the nobility, outdated government, economic problems, जिसकी वजह से if you are supporting the American war when you don't have money yourself, it would lead to debt crisis, food shortages, unfair tax, you are taxing the third estate more and more. Then social inequality भी थी obviously, क्योंकि privileges by birth था, जो if you belong to the royal family, related to the royal family, you have lot of rights, but if you are not, then you are subdued. आपको subjugate करा जा रहा था to the king's wants. Okay, out what? Yes, we are just doing a recap. If you see these words, intellectual causes, आपके mind में क्या आएगा इसको देख के कि एक इनलाइटनमेंट का टाइम था. उस टाइम थिंकर्स आ रहे थे, बिजनेस क्लास आ रही थी, एजुकेटेड क्लास आ रही थी, प्रोफेशनल्स आ रहे थे, जिन्होंने कहा हम सबड्यू नहीं होंगे. दिस वाज द इनलाइटनमेंट पीरियड जहाँ पे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स आ रहे थे. ऐसे इमीडिएट ट्रिगर क्या था कि उन्होंने बोलता हम टैक्सेस इंक्रीज करेंगे क्योंकि शॉर्टेज थी ट्रेजरी में पैसे की, एंड पीपल डिड नॉट अग्री कि टैक्सेस इंक्रीज होने चाहिए ऑब्वियसली, तो दे वर रिवोल्टिंग. पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे कि जो लुई 16 थे वो एक वीक किंग थे, उनकी वाइफ भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थी, तो नोबिलिटी बहुत ही पुअर, मतलब दे वर नॉट एबल टू रन द कंट्री प्रॉपरली. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थी. तो बेसिकली वी आर जस्ट डूइंग अ रिकैप. व्हेन यू सी दिस वर्ड, इससे आपको क्या क्या माइंड में आता है जो हमने पढ़ा है, डू दैट, राइट. आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन अल्टीमेटली हुआ, स्टेट जनरल असेंबली में मीटिंग बुलाई, थर्ड स्टेट, वी हैव एक्चुअली डन ऑल दीज थिंग्स, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट. स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली, पॉपुलर अपराइजिंग हुई, उसके बाद अल्टीमेटली न्यू फाउंडेशंस रखी गई. टाइमलाइन ऑफ मेन इवेंट्स, वी हैव डन दिस. मैं बस उस पर फोकस करना चाहूंगी कि जब पैलेस ऑफ टुलरीज का अटैक हुआ था, उसके बाद कौन व्हाट ओके जब पैलेस ऑफ टुलरीज अटैक हुआ था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड हुई थी. I just want to focus on this thing. वो शायद नीचे हो, I haven't seen it, so मैं यहाँ पे बता देती हूँ. Constitutional monarchy ended. उसके बाद we move towards convention and फिर directory rule. Directory rule में क्या था? या एग्जीक्यूटिव जो थे वो मिलके रूल करेंगे ताकि कोई एक जो है वो ऑल पावरफुल ना हो, लेकिन उसके भी प्रॉब्लम्स थे, वो आपस में ही लड़ने लगते थे. ओके, एंड फिर नेपोलियन बोनापार्ट का 1804 में रूल आया जो डिक्टेटरशिप में बदल गया, एंड ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज मॉडर्न. या जी बोलें. फर्स्ट स्लेवरी अबॉलिश रॉबस्पियर ने करी थी, रॉबस्पियर के टाइम पे हुई थी. एंड जो ईयर आई हैव टू चेक, वेट अ सेकेंड, 1794. ओके,
1794 ड्यूरिंग द कन्वेंशन रॉब्सपियर के टाइम पे स्लेवरी अबॉलिश हुई थी, बट इट वाज ओनली फॉर 10 years, अ शॉर्ट लिव्ड पीरियड, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने इंट्रोड्यूस करा दी थी, एंड देन अल्टीमेटली जो अबॉलिश हुई थी दैट वाज इन 1848, राइट? एंड नो नो 1804 में तो नेपोलियन बोनापार्ट आए थे टू रूल। 1840 दो ही तो हमारे दूर के ईयर्स थे, वन इज 1848 जब परमानेंटली अबॉलिश हुई स्लेवरी, एंड देन नेक्स्ट इज 1946 जब विमेन को वोटिंग राइट्स मिले। वी हैड डिस्कस्ड इट, यू रिमेंबर? सो एनीवे, तो इसीलिए टाइमलाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स को बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टोरी तो आपको याद रहेगी, हिस्ट्री इज अबाउट स्टोरी, लेकिन उसके बीच में ब्रेक पॉज ले लेके यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स, बिकॉज एग्जाम में डेट्स पूछी जाती हैं, यू हैव टू रिकॉल डेट्स। स्टोरी आपको याद रहेगी कि कोई रेवोल्यूशन हुआ था, उसके कारण क्या थे, कि सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स थी इसलिए वो रेवोल्यूशन हुआ था, उस रेवोल्यूशन के बीच में कुछ इंटेलेक्चुअल थॉट्स आए थे, फिर थोड़े थोड़े फेजेस में उसको चेंज करने की कोशिश करी, पहले मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर उसको हटा के रिपब्लिकनिज्म आया, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का आया, लाइक दैट। बट द डेट्स आर इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन द डेट्स, रिमेंबर द डेट्स। देन विजुअल मैप, इसमें जो ये लिखा हुआ है दिस इज नॉट करेक्ट, सो आई थिंक यू शुड रादर रेफर द गूगल मैप्स फॉर दिस, बिकॉज ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है दिस इज नॉट इंग्लिश, सो वी कांट इंटरप्रेट इट। बट या कहाँ कहाँ क्या हुआ था, एस्टेट जनरल की असेंबली वर्सेल्स में हुई थी, विमेंस मार्च हुई थी यहाँ पे, पेरिस में बैस्टिल स्टॉर्मिंग हुई थी, रूरल फ्रांस में पेजेंट्स और ये ग्रेट फियर एक था कि किंग जो है वो ऑप्रेस करेंगे और ज़्यादा थर्ड एस्टेट को, एंड बॉर्डर रीजन्स वॉर विद यूरोपियन पावर्स, ये नेपोलियन के टाइम पे ज़्यादा था। एंड देयर वाज आल्सो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुई थी, सो किंग वाजंट इजीली गिविंग अप ऑन हिज पावर, ही वाज प्लानिंग, प्लॉटिंग, नेगोशिएटिंग विद नेबरिंग किंगडम्स लाइक किंगडम ऑफ प्रूशिया, ऑस्ट्रियन आर्मी अपने आप को सोच रही थी कि हम भेजेंगे फ्रांस में अपने आप को, just so that monarchy abolish now. Important personalities, we are just doing a recap. King Louis XVI, an important personality, obviously Marie Antoinette, and इन लोग को 1793 में execute कर दिया गया था, although this year probably is not mentioned in your book, so not very necessary for you to remember. But what is important to remember is 21st September 1792 monarchy abolish हुई थी। देन रॉब्सपियर किस रूल के अंडर थे? कन्वेंशन। Yeah, he was a member of Jacobin Club, the head of the Jacobin Club, you can also say that. Consequences for monarchy and nobility, end of divine rule, divine right. Divine right के बारे में बात किसने करी थी? Say it confidently because what you are saying is right. जॉन लॉक ने करी थी, और डिवाइन राइट को एंड करते हैं तो कौन से राइट्स हम लाते हैं? Natural rights, exactly, and this has been stated by John Locke. Then noble emigration, obviously emigration मतलब चले जाना वहां से, तो जो nobility थी they were flying out of France and to the neighboring kingdoms. And royal execution, King Louis XVI जिलिटीन कर दिए गए थे जनवरी 1793 को, क्वीन को एग्जीक्यूट करा गया था अक्टूबर 1793 में, दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मतलब कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई थी, मार दिया गया था, और जो भी लैंड्स थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, नोबल्स के जो भी लैंड थे, ओके। और जिससे हमें पता है 2 बिलियन लेवर्स भी आए थे एक पॉइंट पे। तो रेवोल्यूशन इन कॉमन पीपल, अर्बन वर्कर्स, सैन क्लूटोज, I think we had also talked about sand clutos or clutos. Basically knee breeches थे, nobles जो थे वो knee breeches पहनते थे। तो सैन कुल्टोस जो थे वो आम लोग थे जिन्होंने बोला था we won't wear knee breeches, we want to be seen separate or different or distinct from the noble class, hence we won't wear it. So हम पजामा पहनेंगे, the striped red pajamas, we won't wear वो इस टाइप के boots जो यहाँ पे पहनते थे, तो वो सैन क्लूटोस बने, मतलब कहलाए जाते थे, the people who said we won't wear the knee breeches.
Then peasants, rural farmers initially supported revolution to end feudal dues. They gained land ownership rights. Some regions later turned against the revolution when it attacked the church. क्योंकि जो रॉब्सपियर का रूल था वो चर्च के भी अगेंस्ट था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट दोनों के ही वो अगेंस्ट थे, तो ऑब्वियसली सम पीपल इन द फ्रेंच सोसाइटी डिड नॉट लाइक दैट. अर्ली रिफॉर्म, चर्च लैंड्स वर नेशनलाइज्ड, दिस वी नो, चर्च के लैंड भी कॉन्फेस्केट हुए थे. सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्गी, प्रीस्ट बिकेम स्टेट एम्प्लॉइज, मतलब चर्च और स्टेट सेपरेट हो गए थे. दिस ड्रामेटिक चेंज डिवाइडेड कैथलिक्स अक्रॉस फ्रांस, मतलब सम पीपल सपोर्टेड इट, सम डिड नॉट. Religious conflict, many refused to accept the new system. Some regions rebelled against anti-religious policies. कि obviously अगर आप कुछ better करना चाह रहे हो और इसमें थोड़ा सा चर्च को नुकसान हो रहा है, तो चर्च भी easily अपनी powers को give up नहीं करेगा. So they revolted in that sense. And international reaction, ग्रेट ब्रिटेन इनिशियली सपोर्टिव थे बट लेटर ऑन हॉस्टाइल हो गए थे क्योंकि रेवोल्यूशन रेडिकलाइज हो रहा था, मतलब ज्यादा वायलेंट हो रहा था. ऑस्ट्रिया ऑब्वियसली अपोज क्योंकि उनकी क्वीन जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से आती थी, सो दे डिड नॉट सपोर्ट इट. एंड प्रूशिया जॉइंट कोलिशन अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रांस, मतलब जो भी कंट्रीज या किंगडम्स फ्रांस के अगेंस्ट थे उनके साथ प्रूशिया ने कोलिशन ज्वाइन करी. बेसिकली प्रूशिया ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट फ्रांस. यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्वियसली इनिशियली सपोर्टिव रहेगा क्योंकि फ्रांस ने तो उनको ही इंडिपेंडेंट दिलाने में मदद करी थी, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स इन दैट वे सपोर्टेड. रोल ऑफ प्रोपेगेंडा, दिस इज इंपॉर्टेंट कि how do you spread awareness or how do you spread your ideas across the public. तो उसके लिए न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया गया. रेवोल्यूशनरी पेपर्स लाइक ला आमी दू प्यूपेल स्प्रेड रेडिकल आइडियाज. न्यूज़पेपर के थ्रू आप अपनी जो हम इंडियन, इफ यू हैव स्टडीड एंड इफ यू हैवंट यू विल स्टडी इन फ्यूचर क्लासेस अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस, तो इंडियन इंडिपेंडेंस को भी स्प्रेड करने में बहुत बड़ा रोल रहता था न्यूज़पेपर्स का, मैगजीन्स का, जिनको फिर ब्रिटिश गवर्नर्स जो थे वो उसको क्वेल करने की कोशिश करते थे, मिटाने की कोशिश करते थे. पॉलिटिकल क्लब्स, जैकोबिन क्लब सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड सिंबल्स एंड फेस्टिवल्स, मतलब आप नेशनलिज्म को कैसे देखते हो, नेशनल सेंटिमेंट्स को, यू रिलेटेड विद अ फ्लैग. इंडिया के केस में आप ट्राई कलर से, अपने झंडे से इंडिया को सोचोगे. इंडिया, अगर इफ आई से इंडिया, व्हाट एल्स कम्स टू योर माइंड? आवर स्टेट एम्बलम, राइट, द 4 lions. So that is way, yeah, so similarly उनके केस में, as we have talked about the caps, freedom वाली caps, the red caps, or the San Clutos not wearing the knee breeches, and tricolor cockades, I don't know what cockades is, liberty caps, and public celebrations spread revolutionary values. They created new patriotic culture replacing royal tradition. Now, since we have done everything, I think it's a good time to ask questions. Okay. Which event marked the beginning of the French Revolution? If even without options, you can tell me. Yeah. Storming of Bastilles. Let's check if the answer is correct. And I think it's absolutely correct. Yeah, storming of the Bastilles. The storming of the Bastilles on July 14, 1789 is traditionally considered the start of the French Revolution. It demonstrated the power of popular uprising against royal authority. This date is now celebrated as France National Day. In fact, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो भी एक बार बैस्टिल्स डे परेड में गए हुए हैं. जैसे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे होता है. What do we do on Republic Day? There's a parade. Is there a parade on Independence Day? Yeah, there's no parade on Independence Day. And what is the difference between Republic Day and Independence Day in India? This is out of syllabus question. Right? Yeah, right. We adopted our constitution officially. Yeah, 26 January 1950. Yeah, so ऐसे ही फ्रांस का नेशनल डे होता है 14 जुलाई को. बैस्टिल्स डे स्टॉर्मिंग जब हुई थी, एंड उसमें वो भी अपने वेपन्स की वगैरह की परेड वगैरह करते हैं, मतलब वेपन्स, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाते हैं. Who constituted the majority in French society? Third estate. How much percentage? No, 60%. हाँ,
60% तो लैंड ओन करती थी फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट. Yeah, it's good that you are able to answer things even without the options. So, and यहाँ पे explanation लिखी है. I would really want to go through these questions once again, reading the explanation, because for your better understanding, obviously. Then, the Declaration of Rights of Man was adopted in which year? Which year? Take your time, but do not cheat, right? Okay, I'm saying Declaration of Rights was adopted in which year? Right, let's just check. Yeah, the Declaration of Rights of Man and Citizen was adopted on 26th August 1789 by the National Assembly. So 26th August 1789, Declaration of Rights of Man and Citizen was adopted, another important date. And I hope you were there when I said you have to go through these questions again and read the explanation as well for your better understanding, right? Then, could you describe the circumstances leading to the outbreak of the French Revolution? These are the questions from your NCERT only. Yeah. Right? He thought of increasing the taxes. Yeah. So, going to pay the interest. Yeah. Right. And so people did not like it. It did not go well with the people, and hence they revolted. Very good. You read it. You said it absolutely right. So, what was the role of philosophers? Just tell me the names of the philosophers and maybe the books they wrote. Right. Right. Desk. Pause. That. Besides the churches, and if, for your knowledge, if you want to remember, philosophical dictionary, right? Philosophical dictionary book he wrote. And separation of power की किसने बात करी थी, कौन से thinker ने? Right. Right. And डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होने चाहिए, नेचुरल राइट्स होने चाहिए, उसकी किसने बात करी थी? और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जो रूसो ने दिया था. डू यू नो ऑफ दैट नेम? That's popular sovereignty. Popular sovereignty means, popular मतलब जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व हो, लोगों का मत. ओके, लोगों के चॉइसेस भी दिए जा रहे हैं इन कंसिडरेशन. So Rousseau talked about popular sovereignty. Just remember the word, okay? And then explain the significance of the Declaration of Rights of Man and Citizens. Right? So you don't have, yeah, but do not see in your copy and speak. I hope you are speaking it without the help of your copy. That's good.
Yeah, then that's good. And you can also, मतलब क्योंकि इसमें model answers दिए हुए हैं, I'd really want you to go through them, because in exam if you take the help of diagrams to put forth your answer, it makes a good impact on the teacher and obviously helps you to increase your marks and remember things for a longer time. So वही political foundation, ग्लोबल इन्फ्लुएंस रही, ये राइट्स ने फ्यू आसपास की कंट्रीज को, इनफैक्ट इंटरनेशनली सबको इम्पैक्ट किया, लीगल इक्वलिटी आई, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टीज. सो यू कैन look into these answers, frame your own answers, but इनकी हेल्प से, so that in diagrams को you can utilize in your answers as well. Then explain how the financial crisis in France led to radical social and political changes. The different questions. Trace how, analyze France economic situation before 1789. It was poor, loan ले रखा था, interest के पैसे दे रहे थे, all those things. Cause and effect. Trace how economic problems led to political changes. Quite easy one, right? कि ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो लोग नहीं खुश थे. जब स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई, so the king wanted to increase the taxes, but there were other grievances of the third estate which were not addressed. So the third estate walked out of the Estates General, and then they met again, but because the Estates General Assembly was closed, hence they met at the nearest point, that was the tennis court, where they took the tennis court oath. इसमें ईयर मेंशन करना, सॉरी डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है, 20 जून 1789, जहाँ पे उन्होंने बोला कि वी विल स्टे यूनाइटेड अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड. एंड उसके अलावा that storming of Bastilles, okay, वो भी मेंशन करना जरूरी है. एक्सप्लेन अनप्रेसिडेंटेड सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. ऑब्वियसली जो थिंकर्स आए, उन्होंने जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करी. पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हम मूव ऑन कहाँ से करें? पहले क्या था? मोनार्की था, देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, देन रिपब्लिकनिज्म आया डिफरेंट फॉर्म्स का, कन्वेंशन, देन द नेक्स्ट वाज डेक्लेरेशन, राइट. देन नेपोलियन बोनापार्ट का डिक्टेटरशिप का पीरियड भी आया. तो या एंड द आंसर्स, इसमें से आपको हेल्प मिल जाएगी, बट इट्स लाइक योर होमवर्क, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस, ओके, ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज आंसर्स आपको साथ में प्रोवाइडेड है. इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. आई डोंट वांट यू टू कॉपी पेस्ट. maybe you can just read it, go through the answers, and then frame your own answers, because that would be beneficial from the exam point of view. Then Jean-Jacques Rousseau, you don't have, अगर आपने notes ना भी लिखे हो, so you can just go through them. Popular sovereignty की उन्होंने बात करी थी, separation of powers की Montesquieu ने करी थी, spirit of, basically to not go through the book again and again, to not go through the 60-page PDF again and again. Once you are done, you can again and again go through the questions, right? क्योंकि ये बहुत short में है, note form में है, so it would help you. And I think we are almost done. Previous year board questions, definitely इसके through go through करना, because these are the questions that might be asked again in the exam as well. And you have the answer as well. What is the significance of Bastille in the French Revolution? अगर मुझे बस, I know answers you have to frame in length, बट अगर एक लाइन में बोला जाए बैस्टिल्स की क्या सिग्निफिकेंस थी, जो सब कुछ सम अप कर देगा, हाउ वुड यू पुट इट? आई थिंक आई हैव मेंशन्ड इट अ कपल ऑफ टाइम्स. Right, absolutely. This is what I wanted to hear. So yeah, if you begin your answer with that, it would lead in, give an impact. Bastille was a medieval fortress. Fortress मतलब एक, जैसे पहले जब किंगडम्स होते थे, तो आज कैसे आप प्रोटेक्ट करते हो हमारे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, पार्लियामेंट हो गया, विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड एवरीथिंग. लेकिन पहले फोर्ट्रेस बना देते थे, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट लैंड होता था उसको थोड़ा हाइट पे बना देते थे, कॉमन लोगों के एरिया से या पब्लिक स्पेसेस से, ताकि अगर कोई भी हमला करे तो हम ऊपर से पहले ही देख लें और अपने आप को बचा सकें, राइट. सो फोर्ट्रेस का मतलब वो होता है. एंड इट वाज आल्सो प्रेजेंट रिप्रेजेंटिंग रॉयल डेस्पोटिज्म या फिर रॉयल पावर, जो मैंने आपको बताया था. डेस्पोटिज्म का मतलब होता है अ डार्क थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जो मोनार्की थी, दे वर नॉट डूइंग द गुड जॉब, उनके वजह से बहुत ज्यादा डार्कनेस थी इन द सोसाइटी. सो उसी को हम डेस्पोटिज्म बोलते हैं. It's storming on July 4. Date mention करना बहुत जरूरी है, बार बार saying that. And common pitfalls, how to avoid mistakes. This is just for your understanding कि इस chapter में या social science में generally भी history में what mistakes a student can do is
chronology confusion like you did in your paper probably कि जो वो 1794 में पहले slavery abolish हुई, but you wrote 1804, right? जबकि वो टाइम था जब नेपोलियन बोनापार्ट डिक्टेटर बने या फ्रांस के लीडर बने. सो क्रोनोलॉजी अगर इफ यू चैप्टर पढ़ने के बाद उसको अपने वर्ड्स में अपने लाइंस में क्रोनोलॉजी के फॉर्म में लिखते जाओ, इट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो इट्स इंपॉर्टेंट. टर्मिनोलॉजी मिक्सअप, नो की टर्म्स प्रिसाइसली, जैसे एक स्टेट्स वर्ड है, नेशनल असेंबली वर्ड है, सैंस प्लूटोस. बुर्जुआ, बुर्जुआ कौन थे? मिडिल क्लास. टिथेस क्या था? चर्च. एंड टेलीस? डायरेक्ट टैक्स. एग्जैक्टली. सो उसके अलावा डू यू अंडरस्टैंड निमोनिक्स? राइट. सो हाँ, लेट से या लेफ्ट से आप याद रख सकते हो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी. बैस्टिल तो वैसे भी याद रहेगा और बैस्टिल की खुद कोई फुल फॉर्म नहीं है. स्टिल इफ यू फॉरगेट कि बैस्टिल में क्या हुआ था, क्या था, सो यू कैन, इससे आपको हेल्प होगा याद करने में. बिगिन ऑल स्टॉर्म्स टू इनिशिएट लास्टिंग लिबर्टी एवरीवेयर. एंड क्रीप है जो आपको पूरा चैप्टर सम अप कर देता है. ओके. क्रीप कॉजेज, कि कुछ कॉज रहे क्राइसिस जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ, एनलाइटनमेंट रही, एस्टेट जनरल और प्रिविलेजेस को अबॉलिश किया. फोकसिंग ऑन दैट. तो इनिशियल पढ़ने के बाद लास्ट से जरूर जाना. कॉजेस वर्सेस कॉन्सिक्वेंसेस. ये कॉजेस थे, ये प्रॉब्लम्स थी बेसिकली, और ये उनके सोल्यूशन थे. देयर वाज सोशल इनइक्वालिटी, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. इकोनॉमिक क्राइसिस, डेट थी, सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जिसको हम जानते हैं. लुई 16 की वीक लीडरशिप थी. एनलाइटनमेंट आइडियाज आए. आई थिंक हाँ, ये भी एक कॉज था. और अमेरिकन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल. अल्टीमेटली क्या लीड हुआ? एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, डेक्लेरेशन ऑफ राइज ऑफ रिपब्लिकनिज्म जिसमें डेक्लेरेशन कन्वेंशन आया, देन डायरेक्टरी रूल आया, इंस्पायर्ड ग्लोबल रेवोल्यूशंस एज वेल इन फ्यूचर. आई थिंक वी आर डन. Yeah. Any questions you have? Any doubt? Right? So your homework is you need to go through all these questions, be it MCQs, be it NCERT based questions, Olympiad based questions, or even the board questions, right? Read them once and frame your own answers. Okay? So shall we wind up the class for today, as we are done with this chapter at least? Okay? Thank you.